Hello student, good morning. Today I am going to discuss your first topic of your syllabus. It is the basic architecture of the computer. Before going to discuss or define about the basic architecture of the computer, I want to define what is actually the computer. Computer is a general purpose electronics device that is used to perform arithmetic and logical operation, and its full form is commonly operating machine, particular used for technical and education research. Or we can say that it is also the combination of hardware and software, because all the physical devices like the input device, output device, central processing unit, storage devices, all are the hardware part, and the software, the operating system which is installed in the computer is called the operating system, or we can say that it is the software. If we talk about the hardware plus software part, it is a combination of hardware plus software. Software is the collection of program, and hardware is the collection of physical devices. Physical devices are those devices which we can touch, but software part is those part which can't touch and can't see. Physical, if we talk about the physical devices, it may be our input unit, our output unit, storage unit, and central processing unit. These all are the part of hardware. But if we talk about the software, software is a collection of program. Program is called the collection of इंस्ट्रक्शन. अगर हम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर system software, it is the interface between user and hardware. एक्चुअल आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. कंप्यूटर और यूजर हमारे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. विदाउट इंस्टॉलिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जो फिजिकल डिवाइसेस है वो हम किसी भी वर्किंग के लिए कोई भी वर्क उसके लिए पॉसिबल नहीं है विदाउट मीन्स. और वी कैन से दैट without the software our computer physical devices are in no use. If we talk about the application software are used for a specific purpose. किसी भी स्पेसिफिक पर्पज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं हमारी वर्ड फाइल, एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर हैं, उसके बाद हमारे एडोब रीडर. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और इफ वी टॉक अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, Linux and Unix, these all are the part of system software. Now we discuss about the basic architecture of the computer. This architecture was designed by von Neumann. von Neumann एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था अराउंड इन 1945. 1945 में इन्होंने डिजाइन किया था. इट इज दिस आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम. स्टोर्ड मेमोरी
प्रोग्राम। इनका ऑल्टरनेट नेम था इस बेसिक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम। व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम? बिकॉज इट स्टोर्ड डेटा एंड प्रोग्राम in the same memory and this memory is called the main memory। वो क्या करता है, जो हमारा डेटा जिस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना एंड प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन ऑन दिस डाटा। दोनों जो भी हमारा डेटा और प्रोग्राम होते हैं वो सेम मेमोरी में ही क्या होता है, स्टोर्ड होता है, और दिस मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम। अगर हम क्लासिफाई करते हैं कंप्यूटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर size, or on the basis of working, the computer is mainly divided into 10 or 12 part. Like if we classify the computer on the basis of working, on the basis of size, and on the basis of purpose. If we talk about on the basis of working, the computer is divided into 3 parts. First one is our analog computer, second one is the digital computer, and third one is our hybrid computer. And if we talk about on the basis of size of the computer is divided into 4 part, 1 2 3 4. First one is the microcomputer, second one is the mini computer, third one is the mainframe computer, and fourth one is the super computer. वेदर्स की कंडीशंस को चेक करने के लिए और आर्मी यूजेज वगैरह के हमारा सुपर कंप्यूटर यूज होता है, क्योंकि इसकी बहुत फास्टेस्ट स्पीड होती है एज कंपैरिजन टू अदर कंप्यूटर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट वन इज जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड सेकेंड वन इज आवर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर. It is depend on the classification and according to the यूजर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का आपका कंप्यूटर यूज करना चाहता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर. It is the basic architecture of the computer which is containing with the input unit, storage unit, output unit. Input unit is mainly the interface, how the user is enter their input in the computer with the help of these devices, and output unit is to show the result to the user, and the CPU is the basic unit or the main unit of the computer which is to process all the data with the help of control unit. This is the basic architecture of the computer. Now these are the basic parts of the computer. First one is central processing unit, input out devices and output devices. And also CPU is also containing with many numbers of register. Register are the type of storage devices which is डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन इन द सर्किट ऑफ प्रोसेसर. प्रोसेसर के सर्किट के अंदर जो हमारी मेमोरी लाई करती है वो हमारी होती है रजिस्टर. तो रजिस्टर्स जो होते हैं, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है. अगर मैं बात करती हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेकेंड वन इज द control unit, and we also called the register is also the part of CPU. Now central processing unit is the
also called the brain or heat of the computer, and CPU is also an electron hardware circuit which can perform different types of operation. It may be arithmetic operation or logical operation. अगर मैं अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन की बात करती हूँ तो जो हमारा, अगर मैं बेसिक नॉर्मल आर्किटेक्चर बनाती हूँ तो वो हो जाता है हमारा, ये है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड दीज आर द रजिस्टर्स and these are the control unit. Control unit directly connected or communicate with the other devices with the help of buses. बसेज, वो हमारी बसेज कौन सी हो सकती है? मेमोरी बस भी हो सकती है और एड्रेस बस भी हो सकती है. तो अगर हम कंप्यूटर की टोपोलॉजी की बात करते हैं, टोपोलॉजी होती है कि विच स्ट्रक्चर और विच टोपोलॉजी वी हैव यूज्ड टू connect all the devices of the computer, then we have used bus topology. वो बस टोपोलॉजी मेमोरी बस होती है. मेमोरी बस होती है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन यूनिट टू द अनदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. एंड एड्रेस बस होती है कि किसी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डाटा किस एड्रेस पे हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर है वो यूज करती है एड्रेस बस. तो अगर हम बात करते हैं कि विच टोपोलॉजी we have used to connect all the parts of computer, then we call then this topology is called the bus topology. क्लियर है? शायद आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बोलना चाहती हूँ. एंड नाउ वी डिस्कस द central processing unit architecture. It is the arithmetic logic unit, control unit and memory unit. जो control unit होती है इसकी speed many more times, its speed is more time faster than other devices of the computer, because ये one time में इसको सबको क्या करना पड़ता है? कमांड सेंड करनी पड़ती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हर बॉडी पार्ट को मैसेज भेजता है कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ऐसे ही हमारा कंट्रोल यूनिट है. हर जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उन सभी को मैसेज भेजता है कि कोई भी ऑपरेशन किस ऑर्डर में और किस टाइम पे परफॉर्म करना होता है. ठीक है, तो इसी दैट्स वाई इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मेमोरी यूनिट, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद इनपुट यूनिट एंड ऑल्सो डायरेक्टली कम्युनिकेट विद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अगर मैं बात करती हूँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हमारे कौन से ऑपरेशन आते हैं? 2 टाइप्स के ऑपरेशन है. फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एंड सेकेंड वन इज द लॉजिकल यूनिट. तो अर्थमेटिक ऑपरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे ऑपरेशन कौन कौन से आते हैं बच्चे? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस. These all operation are coming under the arithmetic operation. And if we talk about the logical operation are the AND operation, OR operation, NOT operation, XOR. These all are the operation which are coming under the logical operation. Okay, clear है? Now we discuss about the control unit. Control unit control all the activity or operation which are performed inside the computer. It जितने भी operation perform होते हैं वो it may be the arithmetic operation or it may be logical operation. These all are controlled by the control unit. It receives the instruction or information directly from the main memory ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या करता है? मेन मेमोरी से डायरेक्ट कोई भी हमारे में, जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बच्चे, पहले हम डाटा क्या होता है, मे बी वो हमारा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में हो सकता है. तो किसी भी डाटा को ऑपरेट करने के लिए हमें पहले उसको ट्रांसफर स्वैप इन करवाना पड़ता है किसमें? मेन मेमोरी में. तो वो कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेट करती है? मेन मेमोरी से. मेन मेमोरी से डाटा ट्रांसफर होता है आपका कैशे मेमोरी में और कैशे मेमोरी टू रजिस्टर में. और जो डाटा रजिस्टर्स में हमारा स्टोर होता है उन्हीं पे हमारा क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है? डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है मेन memory of the computer. And the second one is the control unit understand which operation to execute accurately and in which order. कंट्रोल यूनिट अंडरस्टैंड विच ऑपरेशन, कि कोई भी ऑपरेशन कब एग्जीक्यूट करना है और क्या वो
एक्यूरेटली एग्जीक्यूशन में है या नहीं है, और इन विच ऑर्डर। अब अगर आप बात करते हैं कि ऑर्डर का क्या मतलब है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ऑर्डर लाइक मेरे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है या कोई भी ऑपरेशन है, लाइक a प्लस बी इक्वल टू सी एंड नाउ द c मल्टीप्लाइड d इक्वल टू e। तो ये हमारा ऑपरेशन फर्स्ट है, ये हमारा ऑपरेशन सेकंड है। तो मुझे कंट्रोल यूनिट को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है। देखो कि हमारी जो वैल्यू ऑफ c इज यूज इन ऑपरेशन विल बी यूज इन ऑपरेशन सेकंड। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल यूनिट को पता चलेगा हमें c की वैल्यू कब मिलेगी, जब हमारा फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो वो क्या करता है, फर्स्ट ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करता है, देन इट इज एग्जीक्यूट द सेकंड ऑपरेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, सेकंड ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे पता चला कि क्यों वो अप्लाई करता है कि कौन सा ऑर्डर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले c इंटू डी इक्वल टू ई को परफॉर्म करते हैं, तो हाउ इट एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम वेयर। क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू कब आएगी, अगर वो फर्स्ट ऑपरेशन लाइक a प्लस बी को अगर परफॉर्म करेगा तभी तो आएगी। दैट्स वाई इट डिपेंड ऑन द order of the operation and as already defined it act as the nervous system of the computer. Okay, it is many times faster than the other devices connected to the computer and it already defined it send the signal to the all devices. Now the arithmetic and logical unit. Arithmetic and logical unit is the combination of digital electronics circuit that can perform arithmetic operation and on integer binary number. वो क्या कहता है कि ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करता है, इंटीजर बाइनरी नंबर पे। इट रिप्रेजेंट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये शायद आपको समझ आ गया होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, एडिशन a प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन a मल्टीप्लाई b एंड सब्ट्रैक्शन a माइनस b, डिवीजन a डिवाइडेड b, और मॉडुलस भी हमारा किस में आता है, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन में आता है। अब वो क्या कहता है, बाइनरी नंबर पे ही क्यों परफॉर्म करता है कि हमारी टू टाइप्स की बच्चे लैंग्वेज होती है। एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। सेकेंड वन इज द लो लेवल लैंग्वेज। High level language is the language which is in the human readable form or which can be understood by the human being। जिसको ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकता है वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है C, C++ और जावा, ये सब किस में होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फा न्यूमेरिकल नंबर। Alpha means int, float, string. These all are the English alphanumerical number. But low level language is that language which is directly understand by the computer. Binary language जो होती हैं हमारी, binary language is in the form of 0 and 1। जो भी ये language होती है वो हमारी क्या होती है, low level language। Okay, अंडरस्टैंड, शायद बच्चे समझ आ गया होगा आपको। नाउ थर्ड इज द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट, द इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गाइडलाइंस आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि आपकी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं और डेटा होता है। क्या होता है, डेटा प्लस program to execute the operation on this data। वो क्या होता है, हमें कोई ना कोई फिजिकल डिवाइसेस, मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हम डाटा और प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टोरेज यूनिट। द स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड द स्पेस, क्या प्रोवाइड करती है, स्पेस टू स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस डाटा। The information or data is saved or held in computer memory or in storage device। अब हम बात करते हैं कि हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे हम बात करते हैं प्रोसेस डाटा, एक होता है प्रोसेस डाटा, एक होता है हमारा अनप्रोसेस डाटा।
अनप्रोसेस्ड डाटा को बच्चे बोलते हैं हम डेटा, क्या बोलते हैं, डाटा। एंड प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। कोई भी हमारा, जैसे कोई भी नेम है, एज है, नंबर है, कोई भी सॉन्ग है, कोई भी ऑडियो है या कोई वीडियो, दीज ऑल आर द डेटा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो आपके बीटेक सेकेंड ईयर में हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी कि प्रोसेस किया है, पूरे नेम में से हमने वो वाले नेम निकाले हैं जो स्टूडेंट बीटेक सेकेंड ईयर में हैं, इसमें है बीटेक सेकेंड ईयर में, देन दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज कॉल्ड द डेटा। ओके, अंडरस्टैंड। एंड जो भी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, वो किस में आता है, हमारा स्टोरेज यूनिट में। एंड these are the component of computer system, processor, main memory, secondary memory, input device and output device. Now what is the main memory? Main memory is the computer memory in any physical device which is capable of storing information. It may be temporarily stored or it may be permanently stored. So we can say that computer memory is any physical device which is capable of storing information temporarily or permanently. How we can say that this data is temporarily or this data is permanently? It is depend totally on the which type of memory we will use to store the data. It may be, if we use RAM-ROM, then RAM memory, it is a volatile memory. If we use the secondary memory, it is non-volatile memory. तो जो RAM में हमारा जो भी डाटा स्टोर होएगा वो टेम्परेरी बेसिस पे होगा। अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी डाटा स्टोर करते हैं वो हमारा परमानेंट बेसिस पे होएगा, परमानेंट बेसिस पे डाटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो on the basis of storage the memory is divided into two parts. First one is our volatile memory, and the second one is our non-volatile memory. अगर मैं बात करती हूँ कि वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, कि वोलेटाइल मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी और इट इज द टाइप ऑफ स्टोरेज हुज कंटेंट आर इरेज्ड व्हेन द सिस्टम पावर इज टर्न ऑफ। जब भी कोई भी सिस्टम पावर ऑफ हो जाती है या इंटरप्ट हो जाती है ड्यू टू एनी पावर फेलियर वगैरह, तो हमारा जो भी कंटेंट होगा वोलेटाइल मेमोरी में that will be erased due to power off. Or if we talk about the non-volatile memory, then it is the type of storage devices whose content are not erased when the system power is off or interrupted. ठीक है, समझ आ गया। तो जो भी आपकी रैम, रोम, कैशे मेमोरी होती है, जो अगर हम मतलब इसमें क्या बताया है, डाटा इरेज्ड व्हेन पावर ऑफ, इसमें क्या होगा, आप डाटा विल नॉट इरेज्ड। तो आपकी इसमें वोलेटाइल मेमोरी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आएगा आपका रैम और कैशे मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी ये। और नॉन वोलेटाइल में आपका आएगा हार्ड डिस्क एंड रोम। जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, भी हमारी किस में आएगी, नॉन वोलेटाइल में। रोम हमारा यूज होता है बेटा जब भी हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब भी बूटिंग स्टार्ट होती है। तो बूटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, रोम मेमोरी के अंदर जो भी हमारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है वहाँ से हमारी बूटिंग स्टार्ट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ यूज वी कैन से दैट जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम रन करता है तो हमारी जो मेमोरी होगी वो हम डिवाइड करते हैं मेमोरी को टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज अवर प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज अवर सेकेंडरी मेमोरी।
अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी इट इज द मीडियम दैट होल्ड मेमोरी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है कि ये क्या होता है, ये वो मीडियम है जो होल्ड करता है डाटा और प्रोग्राम को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हमें डाटा की स्टोरेज करनी है, मीन्स एग्जीक्यूशन के टाइम कुछ ना कुछ सेव करना है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, या प्रोग्राम का कुछ पार्ट हमें क्या किस में भेजना पड़ता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ डिवाइसेस दैट होल्ड डाटा अंटिल इट इज डिलीटेड और इट मे बी ओवर रिटन। जब तक ओवरराइट ना करे या उसको डिलीटेड ना करे तब तक हमारा डाटा कहाँ पर स्टोर रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। मीन्स वी कैन से दैट प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ कि मेमोरी हमारी जो फिजिकल डिवाइसेस हमारा जो कंप्यूटर के पार्ट है वो मेमोरी को कैसे यूज करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं जैसे ये हमारा हो गया सीपीयू। सीपीयू के बिल्कुल अपने के अंदर इसी सर्किट में आपके होते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर के साथ ही हमारी यहाँ आता है कैशे मेमोरी। कौन सी आएगी, कैशे मेमोरी। यहाँ पे होगी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम memory and here the CPU is connected with secondary storage devices. CPU is not directly connected with the secondary storage devices like hard disk, हार्ड ड्राइव वगैरह होती हैं जो हमारी किस मेमोरी के अंदर आती हैं, वो हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और यहाँ पे हमारा जैसे सीडी हो गया, टेप ड्राइव, ऑफलाइन स्टोरेज। मीन्स आपका सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रैम से, कैशे मेमोरी से, बट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेकेंडरी मेमोरी। ओके। अगर अब मैं बात करती हूँ कि मेमोरी हायरार्की ऑफ द कंप्यूटर, अगर मैं मेमोरी हायरार्की की बात करती हूँ कंप्यूटर की, तो मेमोरी हायरार्की की में आता है हमारा फर्स्ट वन इज अवर रजिस्टर, सेकेंड वन इज कैशे मेमोरी, third one is our main memory, fourth one is our hard disk, fifth one is our compact disk, and sixth one is our magnetic tape. This is the memory hierarchy in the computer. क्या कहता है कि जब हम रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर्स हैं हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, लोवेस्ट memory space and high expensive rate। अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, रजिस्टर्स क्या होती है, डायरेक्टली बिल्कुल उसी सर्किट पे होती है जहाँ जो हमारा प्रोसेसर का होता है, और इसके कहते हैं फास्टेस्ट मेमोरी होती है, स्पीड होती है, लोवेस्ट मेमोरी स्पेस होता है, और जो सबसे कॉस्टली अगर मैं मेमोरी की बात करती हूँ उसमें हमारा रजिस्टर आता है। जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाएंगे तो हमारी ये चीज़ें क्या होती रहेंगी, डिक्रीज होती रहेंगी। जैसे कैश मेमोरी की स्पीड कम होती है एज कंपेरिजन टू रजिस्टर, मेन मेमोरी की एज कंपेरिजन कैश हार्ड डिस्क की। तो
top to bottom, if we are going top to bottom, then speed will going to decrease. स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होएगी. कॉस्ट विल बी लेस कॉस्ट एंड स्पेस क्या होगा, हाई होगा. सबसे ज़्यादा स्पेस होगा मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क का. और अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी. अगर मैं बात करती हूँ अभी रजिस्टर्स, हमारा एक्चुअल जब हमारे पास मेन मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, बहुत टाइप की मेमोरी है, तो हमें रजिस्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट हुई. तो हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड इट इज़ वेरी फास्टेस्ट मेमोरी. रजिस्टर रेफर टू हाउ मच इंफॉर्मेशन ए प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट वंस. एक टाइम में जितनी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है कोई हमारा प्रोसेसर, जो भी वो वाली इंफॉर्मेशन या वो वाला डाटा, वो वाला प्रोग्राम हमारा किस में स्टोर होगा, रजिस्टर्स में. सो वी कैन से दैट रजिस्टर इज अ टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज एरिया दैट होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन टेम्परेरी बेसिस. मीन्स टेम्परेरी बेसिस पे डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो भी उस टाइम पे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, वो वाली डाटा और प्रोग्राम हमारे किस में चले जाएंगे, रजिस्टर में चले जाएंगे. हम रजिस्टर्स कैशे मेमोरी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर की स्पीड होती है मच हाई होती है एज कंपैरिजन टू मेन मेमोरी. तो कंपैटिबिलिटी लेवल को लेने के लिए, ग्रैप्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स को यूज करना पड़ता है कि कंपैटिबिलिटी लेवल है हमारा बना रहे. तो ठीक है, तो रजिस्टर आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज इमीडिएटली बाय द सीपीयू. उसी टाइम पे स्पेसिफिक मीन्स अगर मेरे को कोई भी ऑपरेशन A+B, मेरे को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सीपीयू को A की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, B की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी और ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये वाला डाटा जैसे है हमारा सीपीयू, तो रजिस्टर के अंदर हमारी A की वैल्यू मान लो 10 चली जाएगी, फिर B की वैल्यू 20, ऐसे चली जाएगी. तो इस इमीडिएट डाटा की जो भी हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट being executed in the CPU, that data will stored in register, and register files are usually implemented by the way or work like a static RAM. क्या करता है कि हमारा जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक स्टैटिक रैम, हमारी रैम भी है जो 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. स्टैटिक रैम होती है जो रजिस्टर्स की तरह काम करती है और डायनेमिक रैम होती है जो कॉस्टली होती है एज कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम. एंड इसको क्या बोलते हैं, नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन. डाटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार. तो जो हमारे रजिस्टर्स भी होते हैं वो मैनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर वी हैव यूज इन कंप्यूटर. फर्स्ट वन इज अवर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर. Second one is our accumulator. Third one is our memory address register. And fourth one is our memory data. Fifth one is our index register. And sixth one is our memory buffer register. These are basic or mainly register we have used in computer. सभी रजिस्टर का अपना डिफरेंट पर्पज होता है यूज करने का. अगर हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज द रजिस्टर इन द कंप्यूटर प्रोसेसर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन.
हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी प्रोसेसर पे, उसका एड्रेस हमारा कहाँ चला जाता है, प्रोग्राम काउंटर के पास। आपको कैसे समझ आएगा, जैसे मेरे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है लाइक A+B, C × D, E / F, ये हमारी 1024, 1025, 10, ये हमारे एड्रेस है, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस। इस एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शंस और इस एड्रेस पे ये, इस एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन। तो मान लो हमारा 1024 हमारा सीपीयू पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है 1024, तो हमारे प्रोग्राम काउंटर यूज टाइम वैल्यू क्या चली जाएगी, 1025। जब हमारा 1025 हमारा रन करेगा कंप्यूटर पे, तो उस टाइम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या चली जाएगी, 1026। मीन्स समझ आ गया होगा आपको कि द प्रोग्राम काउंटर इज द रजिस्टर इन ए कंप्यूटर प्रोसेसर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड टू द करंट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस कहाँ पे चला जाएगा, हमारा प्रोग्राम काउंटर के बाद। सेकेंड रजिस्टर आता है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इज द रजिस्टर विच स्टोर द इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट। एक्यूमुलेटर क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट को, किसको, अब इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमारा एक्यूमुलेटर यूज होता है। अब इंटरमीडिएट रिजल्ट से आप क्या समझोगे, जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन है A+B = C एंड C × D E एंड E / F = G। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा है 1024 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1025 10, तो हमारी अब मान लो हमारी A+B = C क्या है, ये इंस्ट्रक्शन हमारी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूशन में चल रही है, ये वाली इंस्ट्रक्शन। तो हमारा प्रोग्राम काउंटर में क्या चला जाएगा, 1025 ऑन प्रोसेस। समझ आया, ये हमारा कहाँ चला, अगर ये हमारा प्रोसेसर पे रन कर रहा है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1025। और अगर मैं बात करती हूँ अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो हमारा A+B की वैल्यू कहाँ किस में चली गई, C में। ये हमारा कौन सा ऑपरेटर होता है, असाइनिंग ऑपरेटर। ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता बच्चे, इक्वल टू हमारा आता है लैंग्वेज के अंदर, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द इक्वल ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द असाइनिंग ऑपरेटर। एक्चुअल मुझे इसको इधर लिखना था क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट जाता है, सॉरी, आएगा इधर आएगा E F, ये हमारा असाइनिंग ऑपरेटर। तो C की वैल्यू हमारे कहाँ पे यूज होगी, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। ओके, C वैल्यू हमारे यहाँ, तो C वैल्यू यहाँ यूज करने से पहले उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जहाँ से वो क्या करेगा, हमारा प्रोसेसर उस वैल्यू को उठाएगा। तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट रिजल्ट बिटवीन टू इंस्ट्रक्शन। तो इस वैल्यू को हमारा प्रोसेसर जब ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा तो C की वैल्यू कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्यूमुलेटर से। समझ आ गया कि एक्यूमुलेटर इज द रजिस्टर विच स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन और इट में बी लॉजिकल ऑपरेशन। थर्ड आता है हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब मेमोरी डेटा रजिस्टर की अगर मैं बात करती हूँ, मेमोरी डेटा रजिस्टर में आता है A+B = ये भी हमारा डेटा है, ये भी हमारा डेटा है, और इन दोनों की वैल्यू किसको असाइन होगी, C को। ओके, तो A की वैल्यू भी प्रोसेसर को कहीं ना कहीं कोई तो A एड्रेस पे कोई ना कोई डेटा तो स्टोर होगा ना, A = 10 और B = 20। तो वो क्या होगा, A वैल्यू और B की जो वैल्यू जहाँ भी स्टोर है वो किस में स्टोर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो ये असाइन किसको चली जाएगी, C को चली जाएगी, मीन 30। तो जो 30 वैल्यू जो स्टोर होगी किस में हो जाएगी, आपकी
एक्यूमुलेटर। समझ आ गया। उसके बाद है मेमोरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब मेमोरी की हमारी जो ये ए प्लस बी असाइनिंग सी, ये हमारी क्या है, एक कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन है। ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारा कौन सा रजिस्टर यूज होता है, मेमोरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एंड नाउ फिफ्थ वन, इंडेक्स रजिस्टर। एंड इंडेक्स रजिस्टर इज अ सर्किट that receive, store and the output instruction. The circuit is also called an address register or the register of modification. कोई भी एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए हमारा जो रजिस्टर यूज होता है वो होता है हमारा इंडेक्स रजिस्टर। कोई भी नॉर्मली बुक्स में अगर किसी पेज की वैल्यू को तुम एक पेज को कहीं और पे किसी दूसरे नंबर पे चेंज करते हो तो आप कहाँ पे चेंज करते हो, इंडेक्स में उसकी वैल्यू को चेंज करते हो ना। तो इट इज सेम वर्क लाइक ए बुक, इंडेक्स ऑफ द बुक। तो इंडेक्स रजिस्टर। लास्ट वन इज और मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर, इट इज द रजिस्टर इन सीपीयू that store the data being transferred to and from the immediate access storage. ओके, आपको शायद समझ आ गए होंगे रजिस्टर्स एक्चुअली पर्पज क्या है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में रजिस्टर्स का। नाउ द नेक्स्ट इज आवर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मीन्स स्टोरेज डाटा can't erase when the power is off, or it is a long term, store the data and program on the long term basis. The hard disk and the optical disk are the common secondary devices. It is slow and cheap memory as compared to the primary memory. मैंने ये आपको मैंने आपसे डिस्कस भी किया इन मेमोरी हायरार्की में कि जैसे जैसे आप टॉप टू डाउन जाते रहेंगे तो मेमोरी हायरार्की में स्पीड क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। जो स्टोरेज स्पेस होता रहेगा वो इंक्रीज होता रहेगा और कॉस्ट इज ऑल्सो डिक्रीज। द मेमोरी इज नॉट कनेक्टेड टू द प्रोसेसर डायरेक्टली। ऑब्वियस है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है प्रोसेसर से, बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। इट हैज लार्ज कैपेसिटीज टू स्टोर द डाटा। नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक इनपुट डिवाइसेज एंड output devices. Input devices are the basic which provide the interface कि हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करें, वो करता है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। तो द यूजर प्रोवाइड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। जो हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ये सारा हमारा किसके अंडर आते हैं, इनपुट डिवाइसेस के अंदर। जो भी हम टाइप करेंगे कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि ये वो मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम यूजर क्या करता है, टाइप करता है। माउस, मान लो कोई भी यूजर को कोई भी फाइल ओपन करनी है, उसका रीनेम करनी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना है, तो दीज ऑल ऑपरेशन आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। मीन्स डबल क्लिक करके फाइल ओपन हो जाएगी, राइट क्लिक करके रीनेम पे जाके उसका नेम चेंज हो जाएगा। दीज ऑल आर कमिंग अंडर द इनपुट डिवाइसेस। The input device are the medium of communication between outside world and the computer. मतलब कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करे आउटसाइड वर्ल्ड से, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस ही एक ऐसी मतलब मीन्स डिवाइसेस हैं जो हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती हैं कंप्यूटर का और यूजर का। एंड एक मेन पार्ट होता है इनपुट डिवाइसेस में हमारे होते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं और कन्वर्टर भी बोल कन्वर्ट। जो हम ट्रांसलेटर की बात करते हैं उसमें आते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज कंपाइलर, सेकेंड वन इज असेंबलर एंड फोर्थ वन इज इंटरप्रेटर। Compiler, assembler and interpreter are the translator which is used to convert high level language into low level language. क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ओनली अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज। मीन्स लो लेवल लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। 0-1 की फॉर्म में जो भी लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, किस पे वर्किंग करता है, बाइनरी
लैंग्वेज पे या लो लेवल लैंग्वेज पे। तो दीज आर द ट्रांसलेटर विच वी हैव यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। एंड आउटपुट डिवाइसेस, अगर मैं इनपुट डिवाइसेस की बात करती हूँ तो हमारी इनपुट डिवाइसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें आ जाता है हमारा कीबोर्ड आ जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आ जाता है, मैग्नेटिक इंक MICR जो हम चेक वगैरह के लिए यूज करते हैं, बारकोड रीडर आ जाता है, स्कैनर, माउस, लाइट पेन, स्पीच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दीज ऑल आर कमिंग अंडर द इनपुट devices। और आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस और जनरेट द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अवर इनपुट, कि हमने जो भी इनपुट दी है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिजायर्ड रिजल्ट किसके हेल्प से यूजर को दिखाई देता है, वो होती हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। वो हमारा प्रिंटर भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है। These devices convert the data into a human readable form from binary code, means it also contain with some type of translator which can convert a low level language into high level language, because 0110 की फॉर्म को ह्यूमन की रीडेबल फॉर्म नहीं होती वो, तो उसके लिए हमें जो भी कन्वर्टर यूज करना पड़ता है वो क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करेगा। इट इज़ ए वेरी बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर जिसमें दिस टाइप की आपकी डिवाइसेस यूज होती हैं। बच्चे शायद आपको किसी लेवल तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।